Hello students, welcome in the new class video. ठीक है. Before this we study the Ohm's law, combination of resistance. ठीक है. So but today we are going to start about the Kirchhoff's law and the Wheatstone-based video. For easy problems, in case of easy problems we simply apply the Ohm's law. ठीक है, and calculate the value of resistance. But in case of complicated circuits, complicated problems, ठीक है, we are not able to solve the value of resistance with the help of simple Ohm's law. ठीक है, so required there is for complicated problem solved by the scientist Gustav Robert Kirchhoff. ठीक है, scientist Gustav Robert Kirchhoff given here is two laws to solve such type of problems. ठीक है, so after him these two laws are read as a Kirchhoff's law. ठीक है, so firstly we study the Kirchhoff's law, then after this study the Wheatstone-based video. ठीक है, so here is Kirchhoff's law. Rule number 1, Kirchhoff's first law and otherwise Kirchhoff's first rule. ठीक है, before start the Kirchhoff's law, I am going to introduce the two terms for you. One is junction and second one is loop. See, what is the meaning of junctions and what is the meaning of loop? Junction, more than two wires meet at a one point. More than two wires meet at a one point, that is considered a junction. Suppose here is this one, this one, this one. Here is these wires are there. ठीक है, meet at a one point. So that particular point is called as a junction बेटे. ठीक है, उसके बाद हमारे पास loop. What is loop? Any closed path in an electrical circuit. Any closed path in an electrical circuit is considered as a loop, and that loop is also considered as a mesh. Junction and loop. Here is two terms. Junction between more than one wire meet at a one point. That particular point is called as junctions. ठीक है. And loop. Any closed path in an electrical circuit that is considered as a loop. Otherwise, that is treated as a mesh. ठीक है. So आपके पास Kirchhoff first law. Otherwise, that law is also known as a Kirchhoff junction law. ठीक है, otherwise that is also known as a Kirchhoff current law. ठीक है, so here is see बेटे, here is Kirchhoff first law. According to Kirchhoff first law, या Kirchhoff current law या Kirchhoff junction law, ठीक है, आपके पास algebraic sum of current is equal to 0. Is equal to 0, or we can say that total current remains constant in the circuit, or we can say that current entering the circuit is equal to current leave from the circuit. Means algebraic sum of the current is equal to 0. It means total current in the circuit is equal to 0. हमने कैसे बोला बेटे इसको? See, here is we have different wires. मैंने junction ले लिया बेटे, that point O. Suppose here is I1, that is I2, I3, I4, and here is I5. ठीक है. Here is I1, I2, that is away from the junctions. I2, I3, I4, and I5 toward the junction. यहाँ पे मैंने करंट की वैल्यू अलग अलग ले ली बेटे. ठीक है, देखो more than one wire meet at a one point, that is junctions. So we are discussing here is Kirchhoff first law, otherwise that is also read as a Kirchhoff junction law. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अब as that is not a rule but as for sign conventions, ठीक है, जो अपोजिट डायरेक्शन में उसको नेगेटिव मान लिया, जो पॉजिटिव सेम डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव ले लिया बेटे. तो आप लोग यहाँ पे जो अवे फ्रॉम द पॉइंट है उसको पॉजिटिव ले लो, टुवर्ड्स द पॉइंट है उसको नेगेटिव ले लो. ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, I1 प्लस I2. अब ये देखिए टुवर्ड्स द पॉइंट, इसको आपने लिख दिया -I3 -I4 -I5 दैट इज इक्वल टू 0. यही कहा हमने, algebraic sum of current is equal to 0. I1 plus I2 minus I3 minus I4 minus I5. So it means we are able to say I1 plus I2 is equal to I3 I4 and I5. Current entering the circuit, जो करंट जितना करंट एंटर कर रहा है सेम टाइम उतना ही करंट यहां से लीव कर रहा है. That is the first law, and algebraic sum of the current is equal to 0. So we know the definition of the current, that is dq upon dt, that is equal to 0.
it means dq upon dt is equal to 0, it means charge is constant. ठीक है, नो डिफरेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल टू 0. तो हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. किरचॉफ फर्स्ट लॉ बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. और हमने एक बात सीखी, करंट एंटरिंग द सर्किट इज इक्वल टू करंट लीव फ्रॉम द सर्किट. मैं अनदर एग्जांपल आपको देता हूं बेटे. सपोज मेरे पास हियर इज 2 एंपियर, हियर इज 3 एंपियर, मूव इन दिस वे. यहां से आपके पास यहां पे कितना मूव कर रहा है बेटे? 2 + 3 दैट इज 5. ठीक है, यहां से मेरे पास 1 एंपियर ये चला गया, सपोज 2 एंपियर ये चला गया. ठीक है, आपके पास हियर इज 0.5 एंपियर इधर चला गया. अब मेरे पास एक वायर और यहां से बचता है बेटे. यहां पे कितना जाएगा अब आपके पास? बट इज द वैल्यू ऑफ करंट हियर. देखो टोटल इज 5. जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट लीव करेगा. 1 2 3 2.5, इट मींस यहां पे कितना आ जाएगा? दैट आंसर इज 2.5 एंपियर. करंट एंटरिंग द सर्किट इज इक्वल टू करंट लीव फ्रॉम द सर्किट बेटे. दैट इज द वेरिफिकेशन ऑफ द किरचॉफ फर्स्ट लॉ बेटे. ठीक है, एंड किरचॉफ फर्स्ट लॉ बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. सेकंड वन बेटे, रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 में क्या बोला गया? अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इज इक्वल टू 0. अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इज इक्वल टू 0 इन ए क्लोज्ड लूप. ठीक है, तो सी बेटे, अगर मैं इस चीज को बोलता हूं अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इन ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0. फॉर एग्जांपल दिस वन, ये मैंने ले लिया ईएमएफ E1, इंटरनल रेजिस्टेंस चलो छोड़िए, सिंपल यहां पे लगा लेते हैं, दैट इज R1. यहां ले लेते हैं और एक E2, दैट इज R2. ये हमारे पास क्लोज लूप बन गया बेटे. ठीक है, करंट फ्लो इन द सर्किट इन दैट डायरेक्शन, दैट इज I. ठीक है, ये लूप ले लिया मैंने A B C D. पहले देखो, अगर आपका फर्स्ट लॉ वेरीफाई होता है तभी आप लोग सेकंड लॉ को लगाएंगे. फर्स्ट लॉ बोलता है टोटल करंट रिमेन्स कांस्टेंट इन द सर्किट. ठीक है, करंट एंटरिंग द सर्किट इज इक्वल टू करंट लीव फ्रॉम द सर्किट. ठीक है, सेकंड लॉ हमारे पास बोलता है अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इज इक्वल टू 0. ठीक है, इन ए क्लोज्ड साइकिल. तो हमारे पास क्लोज लूप इज देयर. ठीक है, इस तरह से ले लो या आप लोग ऐसे ले लो. ठीक है, अब आपने स्टार्ट कर दी यहां से, सपोज A B C D A. इस लूप में आपने वोल्टेज को मेजर करना है. तो बेटे वोल्टेज यहाँ पे ईएमएफ ट्रैक भी है और आपके पास प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज आल्सो वोल्टेज. ठीक है, तो आप इंट्रोडक्शन मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिया था बेटे. देखिए, अगर सपोज यू आर डायरेक्टली मेजरिंग द ईएमएफ, आप इस तरफ जा रहे हैं, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, देन ईएमएफ इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव. ओके, अगर आप इस तरफ आ रहे हैं बेटे, ठीक, यू आर मूविंग इन दैट डायरेक्शंस. ठीक, तो हमारे पास यहां पे क्या होगा? यू आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. बैटरी का नेगेटिव पहले आ रहा है, सेल का नेगेटिव पहले आ रहा है, इट मींस आपके पास क्या बनेगा? दैट इज नेगेटिव ऑफ E2. आपने इतना याद रखना है, आपके बुक्स में कंफ्यूज करने के लिए कई वर्डिंग, डिफरेंट वर्डिंग लिखी हुई है बेटे. तो देखो, आपने यहाँ पे क्या याद करना है? अगर बैटरी का पॉजिटिव पहले आ गया तो पॉजिटिव ईएमएफ, बैटरी का नेगेटिव पहले आ गया तो नेगेटिव ईएमएफ, बस. ठीक है, देखिए, अगर हम इस तरह मूव कर रहे हैं तो बैटरी का पॉजिटिव पहले, ईएमएफ इज पॉजिटिव. अगर हम इस तरह मूव कर रहे हैं तो बैटरी का नेगेटिव पहले, तो ईएमएफ इज नेगेटिव बेटे. ठीक है, ओके. सेकंड टाइम अगर हमारे पास ये बेटे, ये रेजिस्टेंस, सपोज दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट इस तरफ है, अगर हम भी इस तरफ जा रहे हैं, वी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट या वी आर मेजरिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटे? IR इज पॉजिटिव. इफ यू आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमारे पास यही प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? दैट इज -IR. बस ये दो बातें, बैटरी का पॉजिटिव पहले तो पॉजिटिव, नेगेटिव पहले तो नेगेटिव. ठीक है, अगर प्रोडक्ट करंट की डायरेक्शन को देख रहे हैं, करंट और रेजिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में है, तो आपके पास क्या होगा? दैट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव. अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? -IR. ठीक है, इज इट ओके? अब मैं यहाँ पे लूप, इस लूप को ले रहा हूं, A B C D A. अब आपने यहां से जर्नी स्टार्ट की, देखिए बैटरी का पॉजिटिव पहले आ गया, दैट इज E1. हम इस तरफ जा रहे हैं A to B. अब आप देखो करंट की डायरेक्शन B to A है बेटे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? -IR1. क्लियर? अब हम इधर से आ रहे हैं, बैटरी का देखो पॉजिटिव पहले आ गया मेरे पास, तो मैंने लिख दिया E2. ठीक है, अब मैं इस तरफ मूव कर रहा हूं, बट करंट जो है वो इस तरफ जा रहा है बेटे. आई एम मूविंग फ्रॉम C to D, बट करंट मूव फ्रॉम D to C, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? -IR2 एंड दैट इज इक्वल टू 0. क्लियर है बेटे?
यहाँ पे देखो E1, ठीक है, ये बातें आपकी क्लियर होगी बेटे, ठीक है। मैं इस चीज को यहां से रब कर देता हूं। देखिए E1 बैटरी का पॉजिटिव पहले, अब आप इस तरफ जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस -IR1, ठीक है। आपके पास बैटरी का पॉजिटिव E2, फिर आप इस तरफ आ रहे हैं -IR2 दैट इज इक्वल टू 0 बेटे। यही बोला एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या बन गया बेटे, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू IR1 प्लस R2, यही बना हमारे पास। अब उसने बोला एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इक्वल टू 0। आपने फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ा था, व्हाट इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या था हमारे पास, इट इज रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हमारे पास मैंने यहां से लिख लिया दैट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब ये क्या है बेटे, 0। तो डिफरेंशिएशन किसका 0 होता है, कांस्टेंट फंक्शन का। इट मींस आपके पास क्या आ गया, वर्क डन इज कांस्टेंट। अगर वर्क डन इज कांस्टेंट, इसका मीनिंग क्या हुआ, इट बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चार्ज कांस्टेंट का मतलब क्या था, इट इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हमने यहां से क्या सीखा बेटे, कि जो फर्स्ट लॉ है इट बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड सेकंड लॉ जो है इट बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटे, ठीक है। ओके, अब हम इनको अप्लाई करना सीखते हैं बेटे। देखिए तो यहां से एक बात हमारा क्लियर हो गया कि फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड सेकंड लॉ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटे। देखो जैसे सपोज मेरे पास ये साइकिल है बेटे, मैं साइकिल में आपको थोड़ा सा फिर हम बात कर लेते हैं। ये E1, ये R1, यहां मैंने ले लिया ये रेजिस्टेंस, अनदर रेजिस्टेंस दैट इज R3, यहां मैंने एक सेल और लगा दिया दैट इज R2 एंड EMF इज E2। ये मेरे पास here is लूप A B C D F G। यहां देखो करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहां से करंट आ रहा है I1, यहां से करंट आ रहा है I2। इस तरह से दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर वायर में कितना जाएगा बेटे, I1 प्लस I2। यहां से देखें तो आपके पास क्या, I1 ऊपर चला गया, I2 आपके पास ये आ गया बेटे। आप लोग देखो जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट लीव कर रहा है, टोटल करंट रिमेन्स कांस्टेंट इन द सर्किट, ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहां से लूप लगाने हैं बेटे, ये वाले लूप आपने अप्लाई कर लेने। आपने यहां से लूप ले लिया A B C D A, इस लूप को लेंगे तो आपके EMF के, चलो अप्लाई करो सेकंड लॉ। तो देखो बैटरी का पॉजिटिव पहले E1, आप इस तरह मूव कर रहे हैं -I1 R1, फिर हम इस तरह मूव कर रहे हैं दैट इज -I1 प्लस I2 R3 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर, कैसे आप, ऐसा नहीं कि जरूरी में आपने ऐसे चलना, आप ऐसे भी चल सकते हैं, तब भी रिजल्ट हमारा सेम रहेगा बेटे। बस इतना याद रखना, बैटरी का पॉजिटिव पहले तो पॉजिटिव, नेगेटिव पहले तो नेगेटिव, EMF, ठीक है। अब अगर आपके जिस डायरेक्शन का करंट मूव कर रहा है आप भी उसी में मूव कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट IR इज पॉजिटिव, अदरवाइज IR इज प्रोडक्ट जो है वो, अगर अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं आप तो दैट प्रोडक्ट इज नेगेटिव बेटे, ठीक है। अब देखिए जैसे अब मैं यहां से चल पड़ता हूं D F G C D, D F G C D, अब मैंने ये लूप ले लिया। तो आप यहां से चले, देखो बैटरी का पॉजिटिव पहले E2 और करंट कौन सा यहां पे I2, तो हमारे पास क्या बनेगा -I2 R2, ठीक है बेटे। आप यहां से चले इस तरफ चले गए -I1 प्लस I2 R3 दैट इज इक्वल टू 0। आप बेटे इस तरह से इन चीजों को हैंडल कर लेंगे बेटे। आई होप अब आपको ये लॉ लगाना आ गया होगा। सुबह मैंने बात की, पिछले वीडियो मैंने बात की थी आपसे, अगर ये जैसे ये दो सेल है 2 वोल्ट 4 वोल्ट 2 ओम 1 ओम, सपोज यहाँ पे करंट 2 एम्पियर इस तरफ दे रखा है, बट ये पोटेंशियल डिफरेंस, यही कहानी यहाँ पे देखो बैटरी का पॉजिटिव पहले 2, आपके पास यहाँ पे यू आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन A to B, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा -2 into 2 दैट इज 4, बैटरी का पॉजिटिव पहले 4 देन -2 into 1, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, यहां से देखो दैट ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट A and B, इट मींस 2, ये 4 चला गया, 2 - 2 ये भी चला गया, आंसर इज 0 वोल्ट। मतलब बैटरी का पॉजिटिव पहले तो पॉजिटिव, नेगेटिव पहले तो नेगेटिव बेटे। और आपके पास अगर आपके मूव करने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो दैट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, अदरवाइज दैट प्रोडक्ट इज नेगेटिव बेटे, ठीक है। ओके, तो ये थे हमारे पास लॉ बेटे।
अब हम बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है दैट इज आल्सो बेस्ड अपॉन द किरचॉफ्स लॉ बेटे। देखो बट जो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है इट इज द एक्यूरेट मेजरमेंट अबाउट द रेजिस्टेंस, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। जो व्हीटस्टोन ब्रिज है हमारे पास इट इज एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बेटे, ठीक है। अगर हमें 3 रेजिस्टेंसेस पता है तो 4th अननोन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहां पे हमारे पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इट इज दैट इज रेजिस्टेंसेस 4 रेजिस्टेंसेस इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज। ये हमारे पास बेटे मैंने यहां 4 रेजिस्टेंस ले लिए P Q R S और यहां पे मैंने इसको बैटरी या सेल के साथ कनेक्ट कर दिया और यहां हमने ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया बेटे दैट इज G दिस वन। अब देखिए यहां से करंट I फ्लो कर रहा है बेटे, ठीक। जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। इफ वी नो द 1, ठीक है, वी कैन इफ वी नो द 3 देन वी कैन कैलकुलेट द अदर अननोन 4th रेजिस्टेंस बेटे। और हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन क्या है बेटे, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ठीक है। आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट टॉपिक बेटे दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज एंड दैट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशंस। कब? जब हमारे पास ब्रिज बैलेंस्ड है, ठीक है। चलो हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए A B C D, यहां से करंट बेटे। अब करंट डिफरेंट ब्रांचेस में जा रहा है तो मैंने यहां बांट दिया I1 और इसको मैंने यहां पे लिख दिया I2। और यहां से देखो एज पर गैल्वेनोमीटर ये करंट I1 गया, यहां पे जाके फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गया एज पर गैल्वेनोमीटर कैपेसिटी, गैल्वेनोमीटर करंट। और यहां पे कितना आ गया बेटे दैट इज I1 माइनस Ig, यहां चला गया। यहां पे I1 था टोटल, Ig इधर चला गया तो कितना बचा बैलेंस, I1 माइनस Ig। ये देखो I2 इधर से आ रहा है, Ig ये आ रहा है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास अब इस वायर में कितना जाएगा, I2 प्लस Ig, ठीक है। ये I1 I2 दैट इज टोटल करंट बेटे, ठीक है। यहां से फिर देखें I2 प्लस Ig, I1 माइनस Ig, तो यहां पे दोनों फिर एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। I1 माइनस Ig प्लस I2 प्लस Ig चला गया तो आपके पास यहां पे क्या बनेगा, I1 प्लस I2, ठीक है। जितना करंट सर्किट में एंटर किया था सेम टाइम उतना ही करंट यहां से लीव कर रहा है बेटे। इज इट क्लियर? अब हमने यहां से एक लूप हमारे पास ये बन गया और एक लूप हमारे पास ये बन गया बेटे। दोनों लूप को आपने स्टडी करना है। फर्स्ट लॉ ये वेरीफाइड कि करंट एंटरिंग द सर्किट इज इक्वल टू करंट लीव फ्रॉम द सर्किट बेटे, ठीक है। अब देखिए इन द लूप ऑफ A B C A, लूप ऑफ A B C A इसको लेंगे। अब देखिए आप I1P, मैंने आपको यही कहा आपके मूव करने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो प्रोडक्ट IR इज पॉजिटिव, अदरवाइज द प्रोडक्ट IR इज नेगेटिव। I1P प्लस IgG यहां तक आ गए। अब हम इस तरह मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस I2R इज इक्वल टू 0, दैट इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बेटे? कैसे लिखा मैंने, I1P P Q R S these are 4 रेजिस्टेंसेस, तो हियर इज प्रोडक्ट ऑफ EMF कितना हो गया इस वायर का बेटे, I1P। यहां कितना हो गया IgG, G फॉर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। इस तरह मूव कर रहे हैं तो ये कितना हो गया, माइनस I2R इक्वल टू 0। यहां से देखिए बेटे सेकंड लूप, सेकंड मैंने यहां पे ले लिया द लूप ऑफ B D C B, जैसी मर्जी ले लो रिजल्ट इज सेम। तो यहां से देखिए I1 माइनस Ig इंटू Q। अब आप चलें D टू C तो हमारे पास क्या बन गया, प्लस सॉरी हम इस तरह मूव कर रहे हैं करंट इधर जा रहा है बेटे, तो हमारे पास यहां क्या रहेगा, नेगेटिव I2 प्लस Ig इंटू S माइनस IgG इक्वल टू 0, दैट इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे, अब हम क्या बोलेंगे बेटे, इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड। ब्रिज कब बैलेंस्ड होगा, जब पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट C। इट मींस पोटेंशियल B और C के ऊपर अगर सेम होगा तो हमारे पास इस पर्टिकुलर वायर के बीच में करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है। ब्रिज बैलेंस्ड मींस ब्रिज कब बैलेंस्ड होगा बेटे, इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड सो गैल्वेनोमीटर करंट इज इक्वल टू 0। तो आपके पास देखिए क्यों, आपको क्लियर हो गई
अगर पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड पोटेंशियल एट पॉइंट सी सेम होगा तो गैल्वेनोमीटर करंट इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं, मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में रख दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, I1P माइनस I2R इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर थर्ड बन गया बेटे। सेकंड यहां पे रखा मैंने, तो मेरे पास क्या बन गया, I1 0 और ये Q माइनस I2S ये 0, इस तरह से बेटे। अगर मैं इस 0 को यहां से हटा देता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटे, इक्वल। इक्वल तो यहां से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। बट ब्रिज बैलेंस कब होगा, ये कंडीशन कब अप्लाई करेंगे, जब पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड पोटेंशियल एट पॉइंट सी हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। तो इन दिस वे वी कैन ड्राइव द व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशंस। इस रेशियो को P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, दैट पर्टिकुलर रेशियो इज कॉल्ड एज व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। इज इट ओके? तो आई होप आपको करंट डिस्ट्रीब्यूट करना आया होगा, ये लूप लॉ लगाना आपको आया होगा बेटे, ठीक है। अब हम थोड़ी सी इनकी एप्लीकेशंस को देखें। सी द क्वेश्चन। अगर सपोज आपके पास यहां पे बोला गया बेटे, हियर इज द रेजिस्टेंस, ये हमारे पास 2 ओम दैट इज 3 ओम, यहाँ पे 4 ओम दैट इज 6 ओम, और मैंने यहाँ पे इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया बेटे, दैट बैटरी वोल्टेज 5 वोल्ट, ठीक है। और हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारे पास दे रखा उसने 3 ओम। अब हमें पूछा, उसने बोला कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड आल्सो कैलकुलेट द, सपोज यहाँ पे एमीटर भी लगा दिया बेटे, फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर बेटे, ठीक है। अब पहले आप देखिए हमारे पास क्या ब्रिज बैलेंस्ड है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस है, ठीक। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, तो चेक इट, P अपॉन Q 2/3 इज इक्वल टू R अपॉन S 4/6। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन ब्रिज इज बैलेंस्ड। इट मीन जो पॉइंट B के ऊपर पोटेंशियल है वही पोटेंशियल C के ऊपर है। अगर पोटेंशियल सेम है तो हमने क्या पढ़ा था, चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो इट मीन इस पर्टिकुलर वायर के बीच में हमारे पास पोटेंशियल मूव नहीं करेगा, सॉरी चार्ज मूव नहीं करेगा। चार्ज मूव नहीं कर रहा है किसी पर्टिकुलर वायर के बीच में, तो हमारे पास क्या है बेटे, दैट वायर इज यूजलेस इन द सर्किट। तो सिंपल इस वायर को हम लोग यहां से रिमूव कर देंगे। अगर आपने इस वायर को यहां से रिमूव कर दिया देन व्हाट हैपन बेटे, वायर रिमूव हो गया। अब बोथ आर इन सीरीज, 2 and 3 सीरीज, 4 and 6 सीरीज, तो हमारे पास यही सर्किट क्या बन गया बेटे, सी ऊपर आ गया हमारे पास 5 और यहां हमारे पास बन गया दैट इज 10। यहां पे हमने वही वोल्टेज सेल लगा दिया बेटे, 5 and 10 बोथ आर इन पैरेलल, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 50 अपॉन 50। तो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटे, दैट इज प्रोडक्ट अपॉन सम, प्रोडक्ट अपॉन सम, इट मीन दैट आंसर इज 10/3 ओम। दैट इज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, करंट इज इक्वल टू B अपॉन R, इट मींस 10/3, तो 3 ऊपर चला गया बेटे, इट मींस 15 अपॉन 10, आंसर इज 1.5 एम्पियर। इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशंस बेटे, ठीक है। तो देखिए ऐसे तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड थी बेटे, बीच में कहां निकालते हैं हम लोग उस चीज को, ठीक है। बाकी इसके न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लोड करूंगा बेटे, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेरी बात समझ आई होगी बेटे। इसके बाद एक और छोटा सा आर्टिकल बेटे, दैट इज स्लाइड वायर ब्रिज। Slide wire bridge is also based upon the application of the Wheatstone bridge. Slide wire bridge बेटे, इसमें भी हमने क्या किया बेटे, it is also based upon the Wheatstone bridge, ठीक है। ये हमारे पास मैंने ले लिया 1 मीटर वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ दिस वायर इज 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। एक टर्मिनल ए, दूसरा टर्मिनल बी बेटे। यहां पे मैंने यहां पे अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया R, और एक रेजिस्टेंस मैंने यहां लगा दिया दैट इज S, और ये ले लिया मैंने गैल्वेनोमीटर, और इस तरह से मैंने जॉकी के साथ यहां कंप्लीट कर दिया बेटे। ये मेरे पास सेल जिसका EMF कितना बेटे E,
अब ए टू बी लेंथ इज 1 मीटर, इट मीन दैट इज 100 सेंटीमीटर बेटे। अब जॉकी, बट इज जॉकी सिंपल, इट इज ए मेटालिक स्टिक विच इज यूज्ड टू कंप्लीट द सर्किट बेटे। हमने यहाँ पे जो वायर लगा रखा है उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज यूनिफॉर्म बेटे, ठीक है। और हमारे पास इट मींस रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज सेम एट एवरी पॉइंट बेटे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जैसे हम लोग जॉकी को टच करते आए बेटे, इस तरह से इस तरह से इस तरह, यहाँ हमने देखा गैल्वेनोमीटर शोस नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोस नो डिफ्लेक्शन, इट मीन ब्रिज इज बैलेंस्ड, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक मेरे पास ये लेंथ कितना आ गया बेटे, दैट इज एल, ठीक है। अब मेरे पास उसके बाद यहां से अगर आगे मैं मेजर करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज 100 माइनस एल, दैट इज 100 माइनस एल। एक रेजिस्टेंस ये बन गया बेटे, दो रेजिस्टेंस ये हो गए, दो रेजिस्टेंस मेरे पास ये हो गए। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड विद द लेंथ, इट मीन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड विद द रेजिस्टेंस 100 माइनस एल, अगेन दैट इज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बेटे, ठीक है। तो दो रेजिस्टेंस ये हो गए, दो ये हो गए। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अगेन इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो आपके पास बीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो हमारे पास कंडीशन P अपॉन Q L ओवर 100 माइनस एल इज इक्वल टू R अपॉन S। तो हम लोग यहां से अननोन रेजिस्टेंस, सपोज दैट इज अननोन रेजिस्टेंस इज हियर, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ S, S इज इक्वल टू L ओवर 100 माइनस एल। अच्छा S इधर आ गया बेटे, तो आपके पास क्या बन गया इधर 100 माइनस एल अपॉन L इंटू R। इस तरह से हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बेटे, अननोन रेजिस्टेंस बेटे। तो आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया किरचॉफ्स लॉ के रिगार्डिंग और व्हीटस्टोन बेस के बेटे। जो हमारा फर्स्ट लॉ था दैट बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकंड लॉ जो था दैट बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटे, ठीक है। और व्हीटस्टोन बेस जो था दैट इज आल्सो सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ बेटे। और जो स्लाइड वायर बेस था दैट इज सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन बेस बेटे, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड बेटे। तो प्लीज like and subscribe it in the channel, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटे।